Hello student, how are you? I think you all are fine. Okay, this is Mohammad Naveer Shaheen. I'm the teacher of political science in your class and I teaches political science. This is chapter number 5 and the name of this chapter is judiciary. Previous chapter, in chapter 4, we discussed rules and laws. We discussed about laws, how laws are made and what are laws. And in this chapter we discussed judicial system. In this chapter we will discuss, because this is the chapter lecture number 1. So in this chapter we will learn about overview of the Indian judicial system, where it is the mention. Okay, and overviews we discussed, we explained, I explained the overviews of judicial system, and the second is composition and functioning of judiciary. In this chapter we also discussed about the judicial system, the function of judicial system, and the third point is what constitute an independence judiciary, and also we discussed the independence judiciary, and we discussed the need of independence judiciary, and the last one, importance of judiciary. These are some points we discussed in this chapter. इन सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि फर्स्ट वी डिस्कस्ड बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, द फर्स्ट इज judiciary, because we know that India is a democratic country. India is a democratic country, and the three main pillars of this democracy is legislative, executive and judiciary. Judiciary is the third part, but it is very important because we know that the legislator make rules and regulations, executive enforce them, but judiciary keep eyes and they watch the regulating work of executive or legislator. Judiciary means the judiciary is the system of court that interpret and applies the laws in the name of state. Legislator made laws according to constitution, executive enforce that laws made by legislative, but judiciary keep watch and they interpret and applies the laws. If the judiciary feels, feels that that laws is not good for the state, or this laws, that laws, some laws, okay, not made by according to constitution, okay, अगर उनको ऐसा लगता है कि जो रूल रेगुलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बना हुआ है या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना हुआ है, देन दे एंट्रैप्ट, उस लॉज को एंट्रैप्ट कर सकती है, एंड दे गिव द ऑर्डर and give the order to the government, then after that government can change or remove that rule regulation. The judiciary along with executive and legislative is amongst the three most important organs of a democratic state. As I told, जैसा मैंने कहा कि judiciary एक डेमोक्रेटिक कंट्री का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. Without judiciary we cannot imagine of a we cannot say a fair democracy. हम किसी भी कंट्री को फेयर डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं जब तक कि वहाँ ये तीनों चीज़ें लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी नहीं हो, और ख़ासकर जुडिशरी ना हो, बिकॉज जुडिशरी कीप वॉच एंड दे रेगुलेट, और वो रेगुलेट करती है और वॉच करती है, एंड दे अप्लाई डेमोक्रेसी के फेवर में जुडिशरी का होना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक स्टेट. जिस तरह से लेजिस्लेटर है, लेजिस्लेटिव है या जो एक्सिक्यूटिव है, ठीक उसी तरह से जुडिशरी का भी होना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. इन इंडिया, टू इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ वी हैव ए जुडिशनल सिस्टम विच एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट. इन इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया, हियर वी
we say that India is democracy. How? Because the judicial system is a part of our state. We cannot throw them, we cannot allow. हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते और हम जुडिशरी के बिना नहीं रह सकते हैं. It is so important. So in India it is important. अगर हमको इंडिया में एक डेमोक्रेटिकल कंट्री में किसी रूल्स को, लॉज को इन्फोर्स करना है तो जुडिशरी का होना जरूरी है. विदाउट जुडिशरी कोई भी रूल्स को अगर आप इन्फोर्स करते हैं तो आप लॉज उसे अप्लाइड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते हैं कि इट इज अ डेमोक्रेटिकल कंट्री. सो इट इज. नाउ वी डिस्कस्ड अ ब्रीफ structure of brief overviews of judiciary in our India. It is overview. First of all, when we discussed it, when we see that, so in our views that the firstly formally known as colonial judiciary. जुडिशनल सिस्टम में अगर बात करें तो इंडिया में फॉर्मली यानी सबसे पहले अगर हम वो बात हो रही है, स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ आ रहा है तो में ब्रिटिश रूल्स में जब इसको स्टेबलाइज्ड किया गया था उस समय इसका नाम कॉलोनियल जुडिशरी रखा गया था. इंडियन जुडिशरीज को अभी हम उसको इंडियन जुडिशरीज कहते हैं, पहले हम उसे कॉलोनियल जुडिशरी कहते थे. इनका फॉर्मेशन, the formation when it was formed of 1726. इसे फॉर्म्ड कब किया गया? 1726 में मेयर कोर्ट मद्रास. मेयर कोर्ट मद्रास, इट वाज फाउंडेड इन 1726 मेयर कोर्ट मद्रास में. एंड किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जो कोई वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, तो पहले उन्हें ट्रेंड किया जाता है. अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी से पहले वहाँ ट्रेंड होगा. उसी तरह से जुडिशनल सिस्टम में जो जजेस होते हैं या जो लॉयर होते हैं उनको वही जजेस को पहले ट्रेंड किया जाता है कि हाउ दे वर्क, बिकॉज जब वे ट्रेंड होंगे देन देयर वर्क वेरी गुड एंड इफिशियंस वे वर्क करेंगे. सो इनका इंस्टीट्यूशनल जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है वो है आपका दो. वन है आपको जो नेशनल लेवल पर है, दिस वाज द नेशनल जुडिशरी एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में. वेयर इट इज द नेशनल जुडिशरी एकेडमी. और सेकेंड, एवरी स्टेट ऑल्सो, हर स्टेट एक अपना अपना स्टेट जुडिशनल एकेडमीज बनाती है. जो नेशनल लेवल पर वो है नेशनल जुडिशरी एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश. एंड एवरी स्टेट ऑल्सो, और दूसरी स्टेट अपनी एक स्टेट जुडिशनल एकेडमी बनाती है. एंड द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, इस पूरे जुडिशनल सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट. हु कंट्रोल दिस वन? गवर्नमेंट? नो, गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करती है. ऑल जुडिशनल सिस्टम्स कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. Supreme Court is the higher authority of judicial system and the High Court higher authorities of a judicial system in the state level. But the Supreme Court also regulated and keep watch the work of High Court. हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है, बट सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर कंट्रीज में के लिए होगा एंड हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर काम करेगी. आफ्टर दैट ड्यूटीज, इनकी ड्यूटीज क्या है? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए जज? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ जुडिशनल सिस्टम? व्हाट आर द ड्यूटीज? ड्यूटीज प्रोवाइडेड जस्टिस टू विक्टिम एंड पनिश्ड ऑफेंडर्स. टू, पहली चीजें क्या है कि इनको एक चीज दिया जाएगा कि जो भी वर्क है यानी कि जो विक्टिम्स हैं उन्हें क्या दे देना? आपको जस्टिस पहुंचा देना. किसी भी तरह के जो होंगे विक्टिम्स को जस्टिस कहना, और कोई ऑफेंडर है अगर किसी ने गिल्टी की है तो पनिश करना जुडिशनल सिस्टम में है. हमारे जुडिशनल सिस्टम में दो चीज़ें दी गई, उनको सारा मतलब जुडिशनल सिस्टम में जो जजेस होते हैं वो सारे प्रोसेस को देखते हैं एंड आफ्टर दैट दे डिसाइड द डिसीजन. एंड जो मेनली पर्पस है वो दो ही है कि जो इनोसेंट हैं और जो ऑनेस्ट हैं उन्हें जस्टिस देना, जो गिल्टी करते हैं, कमिटेड क्राइम में है, उन्हें पनिश कर देना. आफ्टर दैट हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. हमारे यहाँ कोर्ट्स कितने हैं? तो इन आवर इंडिया the 3 or 4 types of court. One is the national level, the Supreme Court of India. In state level, High Court of India. After that, subordinate courts, and the lower court is executive or revenue court. So the lower court is subordinate court. जो lawyer है पंचायती राज, पंचायत में अगर हम बात कर सकते हैं, लोअर लेवल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लोअर लेवल के अंदर में आ जाएगा. पंचायत कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी डिवाइडेड सिविल कोर्ट एंड
सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट एंड सेशन कोर्ट. हियर इज द एक्सिक्यूटिव और रेवेन्यू कोर्ट. और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर में अगर हम वहाँ जाते हैं तो फिर हमारे पास आते हैं हाई कोर्ट इन द स्टेट लेवल एंड द सुप्रीम कोर्ट. वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट इज इन द न्यू दिल्ली एंड द हाई कोर्ट इज द स्टेट कैपिटल. कहाँ है? स्टेट. और आफ्टर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में, एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में है. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपके 2 कोर्ट्स हो जाएंगे, आपको एक्सिक्यूटिव एंड रेवेन्यू कोर्ट्स. तो इट इज हायर हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स. पोस्ट डेजिग्नेशंस, वी कॉल्ड, every post have some designations and we called their name. Okay, we called their name. For like our schools, who is the head of our school? We call the designation. Oh, the principal is the head of institution and we call the principal. Okay, and so that the post designation we call justice, we called judge and we called मैजिस्ट्रेट. हम मैजिस्ट्रेट का नाम ले सकते हैं, हम जजेस और जस्टिस कहते हैं. एंड कैडर स्ट्रेंथ, हाउ मेनी जजेस इन आवर कंट्री? How many judges in our country? In our countries, the total number now, the sum up and down, approx 23,790 judges in our country. Approx 23,790 judges. For these 34 in Supreme Court. Supreme Court में 34 judges होंगे, 1079 for High Court and 22,677 subordinate courts में judges होंगे. ये संख्या, ये जो नंबर्स हैं, ये ऊपर नीचे कम बेस अकॉर्डिंग टू टाइमिंग पर हो सकते हैं. सम जजेस आर रिटायर्ड एंड सम न्यू अपॉइंट्स, इस तरह से ये जा सकते हैं. बट अभी प्रेजेंटली, उसके बाद इनका सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं? सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के लिए एक अलग सिस्टम्स हैं. लोअर कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनका एक अलग सिस्टम्स हैं. लोअर कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होंगे वो स्टेट लेवल्स की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है. फॉर एग्जांपल बिहार के लिए आपको जो लीगल सिस्टम है वह आपको बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस, दे अपॉइंट द जजेस. वो अपॉइंट जजेस करती हैं. दैट मीन्स जजेस को जो आपको जुडिशनल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, इट इज़ वन एग्जांपल. इन स्टेट लेवल वो जुडिशनल एग्जाम को करती है, हेल्ड करती है. एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपॉइंट द लोअर लेवल ऑफ जजेस. बट इन द हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये एक रिकमेंडेशन होता है कॉलेजियम्स के थ्रू. The Chief Justice of India, the Chief Justice of High Court and the judges of Supreme Court and the judges of High Court. इनके लिए collegiums होते हैं. According to collegiums के through, the President of India appoint the judges of High Court and Supreme Court. Okay, understood. And सभी की तरह से अगर हम बात करते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस के कुछ ना कुछ एक एसोसिएशंस बने हुए होते हैं ताकि किसी भी काम करने पर वे एक साथ मिलकर काम करें. तो जुडिशनल सिस्टम्स के भी जजेस हैं ऑल इंडिया जुडिशनल एसोसिएशन. ये पूरे जजेस के एसोसिएशंस के अंदर में आते हैं. नाउ वन क्वेश्चन वी राइज दैट हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नाउ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज शरद S.A. Bobde. Sharad Arvind Bobde is the Chief Justice of India. Understood? So it is a very overview of the judicial system or judiciary of India. We will discuss the next topic in the next lecture. Understood? Okay. Thank you very much.